اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان میں علاج کروا رہے ہیں, پاکستان سے باہر نہیں گئے. تو جو پاکستان سے باہر علاج کروانے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان کا علاج دیکھیے, میں اس لیے کچھ نہیں کہوں گی کہ ان کو کچھ پراپر پروسیجرز کے تھرو ان کو بھیجا گیا, اور ہر کسی کی چوائس بھی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہاں ڈاکٹرز ایسے ہوں جو میں تو خود چاہوں گی کہ اگر زرداری صاحب خدا نخواستہ اگر ان کا علاج کے لیے یہاں پر وہ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں تو وہ بھی اگر ان کی وہ چوائس ہے تو وہ ملک کے فارمر پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, اور میاں صاحب ملک کے فارمر وزیر اعظم رہ چکے ہیں, تو اگر وہ گئے ہیں تو اس میں کوئی حرج. لیکن یہ میں اپنی جماعت کی ضرور بات کروں گی کہ ہم یہاں پر فیلڈ میں ہیں, گراؤنڈ پر ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں, بیماریاں بھی جھیل رہے ہیں اور کیس بھی بھگت رہے ہیں. شادی یہ بتائیں کہ حکومت نے اے پی سی کے بعد مولانا کو نوٹسز بھیجنے کی خبریں چلوائیں, پھر نون لیگ قیادت کے خلاف بغاوت کے مقدمات ہوئے, پھر اب حکومت نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ کورونا تیزی سے پھیلنے لگا ہے. تو یہ پی ٹی ایم کی تحریک کو ناکام بنانے کی سازش چال تو نہیں ہے؟ دیکھیے, مجھے حیرت ہے کہ جب ہم چیخ چیخ کے کہتے تھے, جہاں ریشو بہت زیادہ تھا اور پیک پر تھا کرونا, تو ہم یہ کہتے تھے کہ حکومت ٹیسٹنگ کرے. اس وقت ٹیسٹنگ نہیں ہوتی تھی, 20,000 سے بھی کم. اس وقت 33,000 ٹیسٹس ہو رہے ہیں, اور اس وقت بار بار کرونا کی فکر ان کو, جو خان صاحب یہ کہتے تھے کہ بین الاقوامی دنیا نے مان لیا ہے کہ خان صاحب نے کرونا کو فتح کر لیا ہے. جب ایک طرف آپ نے کرونا کو فتح کر لیا ہے تو پھر ادھر ابھر کیسے رہی ہے؟ تو اپنے ان کے بیانیہ میں تضاد ہے. یقیناً جو آئٹم نمبر شیخ رشید صاحب ہیں, ان کا جو یہ بیان تھا, جو کہا انہوں نے کہ کرونا کا خطرہ ہے اور دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے, تو آج آپ نے سنا ہوگا ہمارے جو وزیر ہیں سعید غنی صاحب, کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو بھی تفتیش میں شامل کیا جائے. ان کو کیا پتہ ہے؟ میرا ایک سوال ہے کہ آج عاصم سلیم باجوہ نے وہ اپنے پولیٹیکل عہدے سے ریزائن کر دیا ہے. اچھا, اب ان کے اوپر جو الزامات ہیں اس کا ذکر 26 نکاتی اعلان میں ہوا اے پی سی کا تھا. آپ پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا مطالبہ کرتی ہیں؟ کیا سی پیک کی چیئرمین شپ ان کے پاس رہنی چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو خان صاحب کا اپنا ایک مورل ورلڈ تھا جو وہ بار بار آپ کو پیش کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی اگر نقص آ جائے یا کوئی ایسا حادثہ ہو تو وزیروں کو خود ریزائن کرنا چاہیے. تو یہ ان کے رول کے مطابق یہ چیز اسٹیبلش ہونی چاہیے, جو یہ خود ان کا بیانیہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو اعلانیہ ہے مشترکہ, اس میں ہم نے کلیئرلی یہ چیزیں ڈالی ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہونا چاہیے, اور جو بھی ان کے مشیر ہیں, وزیر ہیں, جن کے اسکینڈلز ہیں, جن کی خبریں ہیں, جن کے اوپر الزامات ہیں, اس کی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تحقیق ہونی چاہیے, انکلوڈنگ باجوہ صاحب. دیکھیے, پہلے تو میں اظہار افسوس کروں گی جعفر شاہ صاحب, جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ہی سرگرم کارکن اور وہاں نوٹیبل رہے ہیں, ہمارے صدر رہے ہیں. وہ کرونا کا شکار ہوئے اور اس فانی دنیا سے وہ چلے گئے, تو میں افسوس کا اظہار کروں گی. وہاں کی بہت نمایاں شخصیت تھیں جی بی کی, اور ہم سب کی یہ کوشش, الیکشنز جو ہے اس وقت پارٹی بنیادوں پر ہے. پی ڈی ایم از این الائنس جس کے آبجیکٹیوز الگ ہیں اور الیکٹرل پالیٹکس الگ ہے. اس وقت ہماری پیپلز پارٹی گراؤنڈ پر ہے, وہ مقابلہ کر رہی ہے مختلف جماعتوں میں جس میں نون بھی ہے. تو اس وقت ایسی کوئی الائنس کی بات اس وقت نہیں, تو پھر ہم حکومت بنائیں گے. میڈم, 2 دن پہلے ریاست کا احتیاط چل رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے اپنے لوگوں کو بولنے سے منع کیا ہے, تو کوئی بیک ڈور رابطے ہیں, کیا وجہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے بات ہو سکتی ہے اور ان کے خلاف آپ؟ دیکھیں, یہ وہ پالیسی ہے انگریزوں والی, کیونکہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ
डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं चलेगी और हम एक हैं एक रहेंगे, ये तफरीक अगर ये इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं कि कोई एक पार्टी की तरफ इनका रवैया और होना चाहिए, दूसरी की तरफ और होना चाहिए, तो इसमें कामयाब नहीं होंगे। हमारा एजेंडा जो है वो अवाम के साथ है और इसलिए सिलेक्टेड हुक्मरान से हमारा मुकाबला है और अवाम के हुकूक के लिए इनसे मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। इनको शिकस्त देंगे। सवाल ये है कि आपने कर दिया ना सवाल। सवाल ये है कि आप अवामी नुमाइंदे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, नून लीग। अब हमने देखा कि सूबे में भी और वफाक में भी सब ने बारी ले ली, लेकिन अवाम के मसाइल जूं के तू हैं। तो इन मसाइल का आप क्या समझती हैं? जब आपकी हुकूमत आती है तो अपोजिशन आप पर तनकीद करती है, जब आप अपोजिशन में आते हैं तो आप उन पर तनकीद करते हैं। तो इन मसाइल का असल ज़िम्मेदार कौन है और ये हल कब होंगे? क्योंकि आवाम को 2 वक्त की रोटी चाहिए, आवाम को सुकून चाहिए, आवाम को एहतजाज धरने, आवाम अब थक चुकी है। क्या कहेंगे इनसे? इस पे तो बहुत लंबा आंसर है, लेकिन ये है कि देखिए वो आप माजी की परफॉर्मेंसेस देख लें, सिर्फ आप महंगाई की शरह देख लें। हमारे ज़माने में बिजली की कीमत 6 रुपये पर यूनिट थी, इस वक्त 20 रुपये पर यूनिट है। मुझे बताएं कोई भी घर का बिल, कोई कारखाने का बिल या कोई फार्मर, ये कोई भी इस किस्म के बिल के बाद बचत कर सकता है? मुझे आप बताएं। तो आप एक स्टैंडर्ड रख लें, ठीक है बयानबाजी होती है, अपोजिशन होती है, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के साथ हो रहा है, माजी में हमने ये नहीं देखा तारीख़ में। लेकिन जब भी हुक्मरान सेलेक्टेड हो, जब भी हुक्मरान डिक्टेटर्स हों या बैकडोर से आएँ, तो वो मुल्क के असासों के ऊपर समझौते करते हैं, मुल्क के वसाइल के ऊपर समझौते करते हैं, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर समझौते करते हैं और हुकूमत उनसे नहीं चलती। आज पीपल्स पार्टी ने PDM बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है और इस टाइम जो है पीपल्स पार्टी PDM में बैक बेंच पे चली गई है। क्या ये पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली है? इसके साथ ही कि मौलाना फजल रहमान जो PDM के सरबराह है, पीपल्स पार्टी ने ज़हनी तौर पर मौलवी का जो पाकिस्तान की सियासत में किरदार है तस्लीम कर लिया। देखिए ये एक अलायंस है 11 जमातों का और इस अलायंस में फ़ैसले जो हो रहे हैं जमहूरी अंदाज में हो रहे हैं, इंटरनली बहस होते हैं, हो सकता है डिफरेंसेस हो, लेकिन फ़ाइनल जो फ़ैसले होते हैं उस पे हम सब कंसेंसस की बुनियाद पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के हासिलात के लिए आइडियोलॉजिकल लेफ़्ट एंड राइट सब जमातें शामिल हैं और सबकी यकसा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है। तो इसलिए ये इररेलेवेंट बात है। दूसरा, पीपल्स पार्टी जो है वो सेंटर स्टेज है, आज भी कल भी थी, हिस्टोरिकली भी जब भी अलायंसेस बने हैं तो पीपल्स पार्टी का मरकजी किरदार है। डॉक्टर साहब एक पॉलिटिकल पार्टीज में जो आइलैंड अथॉरिटी बनी है सिंध, उसके हवाले से हड़ताल की कॉल दी है सिंध में, पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करेगी या नहीं? और दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब ने तो ये क्लियर कह दिया कि गवर्नर से बात नहीं करेंगे, तो आप इस आर्डिनेंस को वापस लेने के लिए एनए में तो आपने करारदाद जमा कराई है, फर्दर क्या करेंगे, कैसे ये आर्डिनेंस वापस लेंगे? देखिए, अगर ये इनको शुक्र करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी एक बफर है इन इश्यूज़ में। अगर हम हट जाएं तो ये खुदा न खास्ता इस किस्म के इश्यूज़ के ऊपर सिविल वॉर भी हो सकती है। लोग अपनी ज़मीन के ऊपर, धरती के ऊपर कोई समझौता नहीं करता, वो कश्मीरी हो, वो पंजाबी हो, वो सिंधी हो, वो पाकिस्तानी हो, हम अपनी ज़मीन के लिए जंगें लड़ते हैं। और इसीलिए कानून में ये दर्ज है कि ज़मीन जो है वो सूबाई शोबा है और ये ज़मीन जो है ये आइलैंड है और जिस हद में ये है वो सिंध का है और इसलिए जो भी फ़ैसला होगा सिंध असेंबली की मुशावरत से होना चाहिए। और इसलिए इस वक्त मैं समझती हूँ कि वफाक को एक कदम पीछे हटना चाहिए और फिर इसको इस इशू को अगर इंटरेस्टेड हैं डेवलपमेंट में तो पहले सिंध के अवाम जो हैं जिनका इसके ऊपर हक है उनसे आप फैसला। हड़ताल के उसूलों की हिमायत है हमारी, हम तो उनसे आगे जाकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो एक कदम आगे जाकर ट्वीट किया। अभी हाँ
बस अब वो रिकॉर्डिंग हो रही है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये आपके खिलाफ के लिए काशिया कायम कर रहे हैं, सवाल नहीं होगा उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान खान ये जो टाइगर फोर्स है, ये मैंने कहा है, ये गैर कानूनी फोर्स है, ये एक विजिलेंटे, ये चौकीदारी फोर्स है जो गली का, अब हमें नौजवानों से कोई वो नहीं है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, लेकिन इस किस्म का फोर्स बनाना गैर कानूनी काम है और वज़ीर आज़म ने अपने आप को एक डॉन बना दिया है। वज़ीर आज़म नहीं, डॉन ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई और डीसी से एक बार फिर मैं डिमांड करूंगी कि डीसी किस कानून के तहत उनको ले लेके फिर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत प्रोग्राम में की कोशिश कर रही है कि वो जो ये सवाल पूछ सकते हैं, सुहेल आप पूछे ना। ILF का इज्तिमा से खिताब करते हैं और लियाकत बाग में जलसा करते हैं, तो क्या ये लियाकत बाग में तो सिर्फ कुर्सियों का जलसा था, कुर्सियों की आमद थी, कुर्सियों की शिरकत। अभी धमकी दी है कि सूरत-ए-हाल अगर ठीक ना हुई तो पार्लियामेंट से हम सिखों का भी एक ऑप्शन पीपल्स पार्टी में देते रहना है। अगर पीपल्स पार्टी ये पहला स्टेप उठा लेती है तो क्या ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश नहीं होगी कि वो पार्लियामेंट से आप बाहर चले जाएंगे, फिर आपकी आवाज़ कहाँ जाएगी? देखिए, ये पहला स्टेप नहीं है, जो स्टेप्स हैं 7 नुकात पर एक्शन प्लान है जिसमें आखिर में इस्तीफ़ों का जिक्र है। अभी तो हम पहले नुक्ते पर हैं जिसमें हमने कहा कि हम चारों सूबों में जाकर जलसे करेंगे। अब तो पहला नुक्ता चल रहा है, उसके बाद दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, चौथे आएंगे, पांचवें आएंगे। अभी हमें फार्मर्स से राब्ते करने हैं, हमें लॉयर्स से राब्ते करने हैं, हमें सिविल सोसाइटी से, आपसे। तो इसलिए जब इस्तीफ़ों की बात आएगी तो ये ऑप्शन हमारा मौजूद है। अच्छा, मैं ये बताइएगा कि रोज़ विलेट की बात आपने की, ये इत्तलात ये आई है कि रोज़ विलेट इसलिए बंद किया गया कि वहाँ पे कोई आसेब है, आसेब ज़दा है, तो क्या रोज़ विलेट आसेब ज़दा है या हुकूमत आसेब ज़दा है? ये आफत हुकूमत की आफत है, लेकिन ये सारा झगड़ा माल के ऊपर है, माल के ऊपर। बात बताइए, एक आखिरी सवाल कि PDM बना पीपल्स पार्टी के इनिशिएटिव पर, लेकिन वैसे भी होते देखें तो नून लीग ने मौलाना को सदर के तौर पर तजवीज़ किया, सेक्रेटरी जनरल रोटेशन पे हमने तो रोटेशन का प्रपोज किया है, हमारा भी वही बोल रहा है। मैंने कह दिया, मैं बन गया। आपको ये बनता था कि ये हुकूमत आसेब ज़दा है। आपको दिमाग में बनता था कि ये हुकूमत की आसेब ज़दा है।